Good morning, students. Welcome back. Now, in this video lecture, I am going to teach you about Lorentz force. Lorentz force is the force experienced by a charged particle under the combined action of electric and magnetic fields. We know electric field exerts force equal to QE on a charged particle, and force exerted on charged particle by magnetic field is given by this. So this is the total force which a charged particle will experience in a region where both electric and magnetic fields are present. This total force is called Lorentz force. Now, numerical based on force experienced by charged particle in magnetic field. We have a proton and it is moving in this direction with velocity 4 into 10 power 6 meter per second. And this is a current carrying wire, infinite long है, 4 ampere current जा रहा है. So what is the force experienced by this proton when moving with this velocity? So यहाँ पे इस करंट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी एट पॉइंट पी. सो दिस मैग्नेटिक फील्ड वी आर टू कैलकुलेट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कंडक्टर से पॉइंट पी की इट इज़ गिवन 0.2 मीटर. सो आर इज गिवन this perpendicular distance. So magnetic field due to this current carrying infinite long conductor at point P is given by this K 2I upon R. So K 10 raised power minus 7 to current is 4 and this is the distance. So it is 4 into 10 power minus 6 Newton. Now direction of this magnetic field produced by this current at point P will be perpendicular to the page and directed inward, and it is indicated by drawing a circle and cross inside it. Yeah. So this magnetic field is perpendicular to the page and directed inwards. So see this velocity of charged particle and magnetic field, they are perpendicular. This page is placed on the table, so magnetic field यहाँ पे it will be vertically downward. So V and magnetic field, they are perpendicular, so force is given by this Q, charge on proton given, speed 4 into 10 power 6, magnetic field निकाली है हमने इतनी है, and sin theta, angle between velocity and magnetic field. So it is the force acting on the proton which is moving parallel to the conductor at a distance 0.2 meter from the conductor. Now work done by magnetic force on a charged particle. We know in dot product ये हमारा A vector dot B vector है अगर, so A vector dot B vector is equal to AB cos theta. As I told you कि F is Q V cross B. In previous lecture I told you कि this new vector F will be perpendicular to V vector, and also this new vector F will be perpendicular to B vector. So these two vectors are perpendicular, so F vector dot V vector, this is equal to F V cos 90, this is equal to 0. So dot product of magnetic force and velocity vector is 0. Now we know according to Newton force is ma, then acceleration is dv by dt dot velocity मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट जाएंगे, फिर से ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी. नाउ
इसको 2 इंटू एक्स या 2 बाई, इट कैन बी रिटन बाई प्लस बाई। तो इसी तरह मैं इसको 2 डी वी बाई डी टी इंटू वी, इसको क्या लिखता हूँ 2 बार, डी वी बाई डी टी डॉट बी प्लस डी वी बाई डी टी डॉट बी। देन एक्सक्यूज मी, वी ऑल्सो नो कि डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। So I can rewrite dv vector dot dt dot v vector। ये जैसे सपोज a वेक्टर हो गया, ये b वेक्टर, इसको हम ऑर्डर चेंज करके ले सकते हैं dv वेक्टर अपॉन dt। सो ये जो है dv बाई डी टी डॉट वी वेक्टर, इसको मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, v वेक्टर पहले लिख लिया, dv बाई डी टी बाद में। सो दिस टर्म, इसको मैंने ऑर्डर को चेंज करके लिख लिया। नाउ दिस कैन बी रीरिटन डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर। सी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दिस इज एक्स बाई, दिस इज इक्वल टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड प्लस डी एक्स बाई डी जेड इंटू वाई। सो डेरिवेटिव x को बाहर ले लिया पहले, डेरिवेटिव ऑफ y, फिर मैंने y को कांस्टेंट मान लिया, डेरिवेटिव ऑफ x। सो इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को वी कैन राइट v वेक्टर डॉट v वेक्टर। अगर हम इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स आ जाएंगे। नाउ v वेक्टर डॉट v वेक्टर, वी नो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा। अगर ये ए वेक्टर है, ये भी ए वेक्टर है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा विल बी जीरो। सो वी कैन से वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू दोनों के बीच में जो एंगल है। सो दिस इज वी इंटू वी, दिस इज वी स्क्वायर। सो वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज वी वी कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो इज 1, सो ये आ गया वी स्क्वायर। ये हाफ एम को आप अंदर ले लीजिए, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, लेट मी राइट इट के। सो डी के बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, विच मीन्स के इज कॉन्स्टेंट। इस तरफ जीरो है तो इस तरफ भी जीरो ही आना चाहिए, बिकॉज जीरो ही जीरो के बराबर होता है, 5 कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो इस तरफ जीरो है तो इधर भी जीरो आना चाहिए, और इधर जीरो तब आएगा इफ़ के इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो हेयर के हैज़ टू बी कांस्टेंट। So we can say kinetic energy of a charged particle will not change when force acts on it due to magnetic field. So we also know from work energy theorem, work is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy, और work energy theorem we can say कहती है work done by force is equal to changing kinetic energy। बट के फाइनल एंड के इनिशियल ये बराबर होगी, बिकॉज के इज़ कांस्टेंट। सो ये 25 है तो ये भी 25, तो ये जीरो आएगा, सो वर्क डन इज जीरो। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, बट वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी जीरो। दिस इज योर particle moving with velocity v, and this is force which acts on this charged particle. This force is perpendicular to the direction of velocity. ये force इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज कर दी, ये इधर जाने के बजाय ये इस तरफ मुड़ जाएगा, बट इट्स स्पीड विल नॉट चेंज। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा था ईस्ट की तरफ, तो ये इधर ईस्ट की तरफ जाने के बजाय इधर जाएगा, बट इट्स स्पीड विल रिमेन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। दिस फोर्स कैन ओनली चेंज डायरेक्शन
पहले पार्टिकल ईस्ट की तरफ जा रहा था, अब ईस्ट के बजाय ये इस तरफ मुड़ गया, इधर जाने के बजाय इस तरफ चला गया. सो बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल नॉट चेंज. तो काइनेटिक एनर्जी में ये चीज़ जो होती है, ये दिस इज स्पीड. तो दिस फोर्स कैनॉट चेंज स्पीड, it can only change direction of motion of particle. So work done by magnetic force is zero. Another simple way to look at it, say this is a चार्ज पार्टिकल, ये ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये अब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया. दिस मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी. इस तरफ राइट की तरफ देयर इज मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ये इस तरफ आएगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स से और इसकी डायरेक्शन को बदल के इधर के बजाय इस तरफ मोड़ दिया. नाउ this charged particle will begin to move on a circular path. In circular path, if force suppose इधर लग रही है, this is force and this is velocity. Excuse me. Magnetic force will put charged particle into a circular path. In circular path, velocity and force are perpendicular. And we know F is equal to QV cross V. इसमें this force is perpendicular to velocity. So these conditions can be satisfied only if the particle moves in a circular path. Circular path में this is direction of velocity and direction of displacement. This is direction of force, theta is 90. This is some particle, so this point is A. We know work done is Fs cos theta, and one thing more, V is S by T. जो V की डायरेक्शन होती है वही S की होती है. तो दिस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, या यू में से दिस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कह लो ये, या वेलोसिटी की डायरेक्शन कह लो. और फोर्स अगर इधर लगे चार्ज पार्टिकल के ऊपर तो दोनों परपेंडिकुलर. सो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90, या यू कैन से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90. सो दिस इज एफ एस कॉस 90, दिस इज इक्वल टू 0. सो वर्क डन बाय magnetic force is zero because this force is perpendicular to the direction of velocity, and this force can put charged particle only in a circular path. Now motion of a charged particle in uniform magnetic field. We know force experienced by charged particle in magnetic field is given by this. Now I am going to discuss three different cases of this force. First, if suppose charged particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. This is velocity of charged particle and this is direction of magnetic field. Both are parallel, theta 0. So theta 0, so this force is 0. If they are anti-parallel, direction of velocity either, this is the direction of magnetic field, both are anti-parallel, theta is 180. So if theta is 180, again force is 0 because sin 180 is again 0. So no force will act on a charged particle when it is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. Second case, if velocity is perpendicular to magnetic field, that is theta is 90. ये theta, it is angle between V and B. Since we know this force is perpendicular to the velocity of charged particle, so such force
कैन नॉट चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, it can only change direction, so and put charged particle on a circular path. ये एक चार्ज पार्टिकल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस बॉक्स के अंदर जो स्पेस है उसमें है, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड इनवर्ड या यहाँ पे डाउनवर्ड। चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे पहले ऐसे जा रहा था। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दिस चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन. This force will change its direction of motion but cannot change its magnitude, और ये सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल को घुमाएगी। वी नो इस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन बदलने के लिए वी नीड फोर्स विच इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये अगर हमारा फुटबॉल है, इफ फुटबॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हो इधर, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल जाएगी और इधर चले लगेगा। लेकिन अगर इधर छोड़ दिया जाए, फिर दिस फुटबॉल अगेन विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर इसको फिर से आपने क्या कहते हैं मोड़ना है, तो यू अगेन नीड टू अप्लाई फोर्स लाइक दिस, और ये फोर्स इसकी डायरेक्शन को फिर बदल देगी। फिर ये इधर चला जाएगा सीधा। लेकिन अगर फिर डायरेक्शन को बदलना है, अगेन अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और इधर मुड़ जाएगा। So we can say in order to move a body on a circular path, it must be continuously acted upon by a force. लगातार इसके ऊपर फोर्स लगनी चाहिए। जैसे फुटबॉल यहाँ था तो फोर्स इधर लगेगी तो इसकी डायरेक्शन बदलेगी, और अगर ये फुटबॉल यहाँ था, ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फोर्स इधर लगाएंगे फिर मुड़ जाएगा। यहाँ पे अगर फुटबॉल है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहाँ से फोर्स लगाएंगे फिर मुड़ जाएगा। यहाँ पहुँच गया, ये अगर आप फोर्स नहीं लगाएंगे तो इस पाथ पे जाएगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, बट अगर आप फोर्स लगाएंगे ये फिर मुड़ जाएगा इस तरफ। सो इफ़ यू लुक एट दीज फोर्सेज, इन सब फोर्सेज की डायरेक्शन जो है इट इज़ टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। सो वो फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग। ये सारी फोर्सेस दे आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी टूवर्ड द सेंटर। सो ऐसी फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो हाउ मच फोर्स इज नीडेड बाय दिस फुटबॉल to change its direction and move on a circular path of radius r is given by mv square by। चलिए अगर फुटबॉल का भार मान लिया 250 ग्राम है एंड इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको घुमाना है हमने एक सर्कल में जिसका रेडियस है सपोज 5 सेंटीमीटर या से 50 सेंटीमीटर। तो ये कट गया आपका, दिस इज़ 50 ग्राम सेंटीमीटर, आई एम सॉरी, दिस इज स्क्वायर। तो इट विल बी 250 ग्राम इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 अपॉन 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कट गया एंड दिस इज 5, सो इट इज़ 100 एंड दिस इज 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। 1 सेंटीमीटर सॉरी कट जाएगा यहाँ से, सो दिस इज सेंटीमीटर, दिस इज डाइन। सो इतनी फोर्स लगनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मुझे इस फुटबॉल को जिसका भार 250 ग्राम है
10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस सर्कुलर पाथ में घुमाना है जिसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, तो इसके ऊपर लगातार 500 डाइन फोर्स लगेगी, तभी ये संभव है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कि कितनी फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगनी चाहिए ताकि वो सर्कुलर पाथ में घूम सके। तो let m is mass of this particle, r is the radius, v is its speed, so this much centripetal force is required। मैग्नेटिक फील्ड जो इसके ऊपर लगा रही है फोर्स वो ये है, F is equal to q v v sin 90, बिकॉज हेयर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90। सो अगर ये रिक्वायर्ड दिस इज 500 डाइन, तो ये जो लग रही है इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है, ये भी कितनी होनी चाहिए 500 डाइन। ओनली दिस फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। सो देयरफॉर दीज टू फोर्सेस शुड बी इक्वल। दिस द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और ये है जो इसके ऊपर लग रही है। अगर इसको 500 डाइन की फोर्स चाहिए सर्कल में घूमने के लिए, एंड इफ इट इज 490, सो नो, दिस चार्ज पार्टिकल विल नॉट रिवॉल्व इन दिस सर्कल। सो ये अगर 500 रिक्वायर्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाली फोर्स भी 500 डाइन ही होनी चाहिए। सो इक्वेट दीज टू, देन ये v और v कट गया, ये आ जाएगा फ्रॉम हेयर r इज इक्वल टू दिस। नाउ r इज इक्वल टू, इसको m को नीचे ले आइए, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। सो वी कैन से r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज। टाइम पीरियड, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी एक राउंड में, दैट इज 2πr। तो वी नो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। एक चक्कर के लिए सपोज इसने टाइम कैपिटल टी लगाया, फ्रॉम हेयर कैपिटल टी आ जाएगा 2πr अपॉन वी, वी नीचे आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। सो ये आपका r है, इसकी वैल्यू यहाँ से डालिए, सो इट इज़ 2π/v, और ये r की वैल्यू, ये v और v कट गया। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन राउंड। Number of round completed in 1 second is called frequency, and frequency is reciprocal of time period. So this is expression for frequency. Now third case, when initial velocity makes an arbitrary angle. This is magnetic field along x-axis and charge particle इधर जा रहा है with velocity v, and this velocity is making an angle theta with direction of magnetic field। इधर है magnetic field along positive direction of x-axis, ये magnetic field है। Now resolve v into two components, ये v cos theta बन जाएगा, ये v sin theta। I am calling it v parallel, I am not calling it vx। reason being, ये कंपोनेंट वेलोसिटी का इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट वी वाई, आई एम कॉलिंग इट वी परपेंडिकुलर। नाउ वी नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस। मैं v वेलोसिटी ले लूँ कि चार्ज v वेलोसिटी से चल रहा है, या आई कैन से कि इस चार्ज के पास दो वेलोसिटीज़ है, एक v पैरेलल और एक v परपेंडिकुलर। रीज़न बीइंग v इज रिजल्टेंट ऑफ v पैरेलल एंड v परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैं ऐसे टोल्ड यू, इधर v ले लूँ या v परपेंडिकुलर और v पैरेलल, दो वेलोसिटी से, बिकॉज इन दोनों वेलोसिटी से v बनता है। तो मैं v नहीं ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग इट्स टू कंपोनेंट्स के। मैं ये कहूँगा कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उसके पास एक साथ दो वेलोसिटी से। तो चलिए पहले लेते हैं v पैरेलल। सो चार्ज पार्टिकल v पैरेलल वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये v पैरेलल लेंगे इसको, तो ये होगा v पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो v पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 है। सो f इज इक्वल टू v पैरेलल इंटू v, और इन दोनों के बीच में एंगल 0। सो दिस इज 0 बिकॉज साइन 0 is 0।
सो वी कैन से इस कंपोनेंट के कारण चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अगर इस चार्ज पार्टिकल को कोई इधर खींचे तो ये v पैरेलल की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर इधर खींचेगा तो v पैरेलल की वैल्यू घट जाएगी, अगर कोई इधर धक्का देगा ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। बट देयर इज नो फोर्स एक्टिंग बिकॉज ऑफ दिस v पैरेलल, सो वी कैन से इसकी वैल्यू ना घटेगी ना बढ़ेगी। दिस चार्ज पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ v पैरेलल। अगर इसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है तो ये चार्ज पार्टिकल 2 मीटर 1 सेकेंड में इस तरफ जाता रहेगा, बिकॉज इसको कोई भी फोर्स रोक नहीं रही है। नो सेकेंड v परपेंडिकुलर, अब मैं कह रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इस तरफ है। सो इफ़ इट इज़ v परपेंडिकुलर तो यहाँ पे ये एंगल आएगा v परपेंडिकुलर और इसके बीच का, इट इज़ 90। सो ये आ गया। नो ये फोर्स अब इसके इक्वल v परपेंडिकुलर क्रॉस b, तो दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू v परपेंडिकुलर एज यू नो, ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा एंड दिस फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस चार्ज पार्टिकल। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको इतनी चाहिए। अब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v नहीं है, ये है इसकी वेलोसिटी, और इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है वो इतनी है। सो दिस शुड बी इक्वल, तो एक ये कट गया एंड फ्रॉम हेयर आर ये आ जाएगा हमारा। v परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कीजिए, इसके बराबर है। सो दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच चार्ज पार्टिकल विल मूव बिकॉज ऑफ v परपेंडिकुलर। सो वी कैन से ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमाएगी और इसके कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगी और इसके कारण ये सीधा आगे चलता जाएगा। इसके कारण सीधा आगे जाएगा, इसके कारण जो है सर्कुलर पाथ में घूमेगा। सो अंडर द कंबाइंड इफेक्ट वी कैन से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है और आगे भी जा रहा है। सो दिस पाथ इज हेलिकल पाथ। So we can say when a charged particle enters magnetic field at any angle, arbitrary angle, then it will follow helical path under the combined effect of v parallel and v perpendicular. We can calculate time period, time taken to complete one revolution. T is equal to 2 pi r upon v perpendicular है इसकी velocity, ये है। सो v परपेंडिकुलर इज v साइन थीटा, r की वैल्यू पुट कीजिए, ये है r की वैल्यू, साइन थीटा कट गया एंड इट इज 2 पाई m बाई क्यू। नाउ पिच ऑफ द हेलिक्स, ये चार्ज पार्टिकल एक चक्कर इसने लगाया, यहाँ से चला था यहाँ पे ऐसे 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 और ये यहाँ पहुँच गया, एक राउंड हो गया और ये इतना आगे आ गया। सो द डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, अगर ये यहीं घूमता तो ये ऐसे होता है ऐसे, बट ये यहाँ से चल के ऐसे 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 और ये आगे निकल गया, यहाँ पहुँच गया, इतनी डिस्टेंस आगे, और ये यहाँ पे इस लाइन पे पहुँच के इसका एक राउंड हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ तक हाफ सर्कल यहाँ तक, और ये नीचे वाला हाफ सर्कल, तो पूरा सर्कल हो गया और इस साथ में यहाँ इतना आगे भी आ गया। So this distance is called pitch of the helix. So pitch of the helix is the linear distance covered by a charged particle during the time in which it completes one revolution. So linear distance is because of this v parallel. So we know velocity is displacement upon time. अगर ये आपका है velocity along x axis, तो this is displacement along x axis. So from here x is equal to vx into t. So लेकिन यहाँ पे along x axis this velocity is v parallel और टाइम जो है एक राउंड का टाइम। So substitute value of v parallel and this is value of time period. So this is pitch of the helix. Now motion of a charge in perpendicular magnetic and electric field. This is
electron, a beam of electrons possessing range of velocities. कुछ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से 5 मीटर पर सेकेंड है, कुछ की 6 मीटर पर सेकेंड है, कुछ की 4.5 मीटर per second है. So we have electrons having different velocities. So they are entering through this narrow hole या slit S1, और जैसे ही ये यहाँ पहुँचे इस सर्कल के अंदर, डॉटेड सर्कल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. You know electric field is produced by taking two plates, giving them equal and opposite charge and placing parallel to each other. So this plate is carrying positive charge and this plate is carrying negative charge. They are parallel. So they will produce uniform electric field. This is the direction of uniform magnetic field. So this electron will experience force in this direction, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा. दिस पॉजिटिव प्लेट विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन, और इस सीधा जाने के बजाय धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ेगा और इस स्क्रीन को यहाँ हिट करेगा. नाउ सिंस देयर इज ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी. दिस इज परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड इनवर्ड्स. सो ये है मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स. दिस इज वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी इफ़ यू रिमेंबर ये होता है वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो हमारा चार्ज जो है इट इज़ नेगेटिव, और इसकी वेलोसिटी या तो ले लो आप इसको, इधर चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉन इधर जाए पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है. सो डायरेक्शन, अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है डायरेक्शन निकालने के लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है. ये जो हमारी सेंट्रल फिंगर होती है वो होती है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो वी कैन से अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी. सो करंट की डायरेक्शन या वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये है माइनस ऑफ आई कैप, मीन्स अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ along perpendicular to the page and directed downwards. ये है हमारी z एक्सिस perpendicular to the page और ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ होगी नेगेटिव z डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है नेगेटिव z की तरफ. सो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गए और I क्रॉस के माइनस जे होता है. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन. It will be towards the negative direction of y-axis. तो this is y-axis. तो negative direction means इस तरह. तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगी वो नीचे की तरफ लगेगी और चार्ज पार्टिकल उसके कारण इधर मुड़ेगा. सो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की. इसके कारण ये चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ मुड़ेगा. Now if these two forces are equal, this is magnetic force, this is electric force, both are perpendicular. magnetic field पेज के इस तरफ है, electric field पेज के इस तरफ है. magnetic field is perpendicular to the page and directed inward, and velocity इधर है positive charge. so v vector is perpendicular to magnetic field. ये है magnetic field perpendicular to the page and directed downward. So these are two forces, they are equal. If they are equal, then this charge particle will go straight, it will not be deviated. Electric field ऊपर की तरफ ले जाना चाहती है, magnetic field नीचे की तरफ. If they are equal, then this charge particle will move straight. So Q and Q कट गया, so V is equal to E by V. So we can say कि अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 है, सो दिस रेशो इज 5. सो ओनली दोज इलेक्ट्रॉन विल गो स्ट्रेट जिनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है. बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी वो इस ओपनिंग से, होल से आगे नहीं जाएंगे. अगर उनके ऊपर, दोनों के ऊपर इक्वल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगी, ओनली देन इट विल गो स्ट्रेट. अगर मान लिया
वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा या कम होगी तो या तो मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगी, और वो चार्ज पार्टिकल इधर मुड़ जाएगा और यहाँ पे टकराएगा, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा. So we can say with the help of this arrangement we can select electrons of particular velocity. I told you कि इसमें different velocities के electrons थे, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी की, जैसे v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों की रेशो आप 5 रखो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की. तो आगे जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगी. So that's all in this lecture. Thank you for watching.